Hello students, welcome to online study by Ashadeep Group of School. It's subject English for Standard 12. Today we will study Chapter 3 Deep Water, which is written by William Douglas. Session 1 Chapter 3 Deep Water. In today's session, first of all, it will be author introduction, then after keywords, and then we'll go line by line explanation, and finally it will be question answer session. So let us get information about author. It's time for author introduction. William Douglas is the author of this lesson. William Douglas was born in 1898 and died in 1980. He was born in Maine, which is located in Minnesota. It's a state of America. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. He graduated in arts with main subject as English and Economics. Then after, he had been a teacher in Yakima. Yakima is other state of America. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He got tired of this so that he didn't like this profession of teaching, and he decided that he would start a legal career. Legal career, it means a career related to laws, barrister. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Here see, he meets Franklin D. Roosevelt, the President of America, and he becomes his advisor and friend. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving judge. Friends, here he spent 30 years as servicing justice. He had been a justice, and it was the longest term. No other justice had served at this post for so long. Douglas was the person who remained on this post for the longest period of time, and it was the longest period in the history of the court. The following excerpt is taken from Form of Man and Mountain by William O. Douglas. This excerpt, which we are going to discuss onward, this story is taken from his book, and the name of the book is Of Man and Mountains, which is written by William O. Douglas. And here is a part of this book. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. Here's, the theme of the story starts, friends. Here he has described that, and that how, as a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. He was already almost submerged in swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Here, friends, William Douglas talks about how he came out of this fear, the efforts he put to come out of this stigma, of this phobia of fear, and how he finally get control over this fear. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. This is a real story, a part of his life, William Douglas' life, and that's why it is autobiographical part, and how it support his discussion of fear. So friend, that was about the author William Douglas, what we had. Now let us get a few important expressions which are used in this lesson.
Treacherous, it means unpredictable danger, which cannot be dependable or which is not trustworthy. Here this adjective is used for Yakima river, which is very dangerous. We cannot trust on this river. Subdued my pride. It means to lower or restrain the intensity of self-respect and confidence. A person compromises with his pride. It is called subdue my pride. Flailed at the surface. Flailed at the surface means a person when he drowns inside the water, when he submerged, at that time he strikes or lays out with all efforts at the surface of the water in trying to come out. So meaning is to strike or lash out vigorously at the surface of the water in trying to come out. फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन. हियर उसका मतलब होता है फिशिंग के लिए जाना. लैंडलॉक्ड सैल्मन मानी एक वैरायटी है फिश की, उसके लिए अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन अवेलेबल इन सर्टेन लेक्स. मिसएडवेंचर, इट मीन्स an incident that turns out to be a disaster, a disastrous incident. It is called misadventure. Bob to the surface like a cork. Bob, it means to float or show the characteristics of buoyancy as a cork in water. As cork floats on the surface of water, the same thing the expression used for that is bob to surface like a cork. Curtain of life fell. Here it shows that to indicate that life has ended or a near death experience. Almost life लाइफ का पूरा हो जाना. कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल मतलब होता है टू स्विम अक्रॉस द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. नाउ इट्स keywords. These are the words which are included in our discussion in this first session. YMCA, it's the name of the pool and the full form of it is Young Men's Christian Association. Treacherous, dangerous, unreliable. Drowning, submerging. Gradual means not sudden, slowly, one by one. Water wings, life jackets. Naked, unclothed. Subdued my pride. It means lower or restrain self-respect of a person, to compromise with the pride. And aversion means उसका मतलब होता है disliking. सर्फ का मतलब होता है formed by waves. जब waves आते हैं at the bank of the sea, then it hits at the border and it creates foam. So it is called surf. Frightened, scared. Frightened, it means scared. Terror, deep fear. Revived, rejuvenated or restored, revive karna. Stirred, aroused. Paddle, move through the water. Apping, imitating in an absurd way. बिना सोचे समझे ही किसी की नकल करना. It is apping. Feel at ease मानी feel comfortable. Feel at ease. And misadventure, it means mischief. So these were the keywords, friends. Now it's time for line by line explanation. Friends, before we start the story, here let us discuss a background of the story or the
position, from where the story starts. Here, William Douglas, shares his experience of life. It's the biographical part, what we know. And here he has shared the experience of his drowning in deep water, and that's why the title deep water is given. deep water title इसीलिए दिया गया है बच्चों कि कैसे वो पानी में डूब जाता है, and how does he come out of it, and mainly the effort he has put to come out, किस तरह से वो बाहर निकलता है. और उसका काफ़ी डिटेल नरेशन यहाँ पे विलियम डगलस ने हमें दिया है कि एवरी मोमेंट किस तरह का फियर वो एक्सपीरियंस करता है, किस तरह की वो एफर्ट्स लगाता है वहाँ से बाहर आने के लिए, एंड हाउ डज ही गेट कमांड ओवर दिस फियर, और फाइनली किस तरह से वो इसमें से बाहर निकलता है. तो बच्चों, ये एक एक्सपीरियंस अपने वाटर ड्राउनिंग को लेकर है, पर ये जो सक्सेस ए डिफ़िकल्टी में से जो वो बाहर जिस तरह से निकला है, वो जो फंडा है वो लाइफ में हर एक डिफ़िकल्टी के लिए अप्लाई किया जा सकता है. जो कॉन्फिडेंस इससे मिलता है हमें, वो कॉन्फिडेंस, वो जो फंडा सक्सेस फंडा होता है, वो हमें लाइफ के हर एक स्टेज पे यूज़फुल होता है. तो चलिए जानते हैं विलियम डगलस का ये एक्सपीरियंस के हाउ ही कम्स आउट ऑफ द फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर. It had happened when I was 10 or 11 years old. जब मैं 10-11 साल का था तब ये इंसिडेंट हुआ था. I had decided to learn to swim. मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूँगा. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और स्विमिंग सीखने के लिए याकीमा, जो कि एक स्टेट है, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल हुआ करता था जिसका नाम है YMCA. इसका पूरा फॉर्म होता है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन. इस पूल में मुझे स्विमिंग सीखने का एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला था, और ये काफ़ी बढ़िया प्लेस था स्विमिंग सीखने के लिए. देखिए, ये याकीमा रिवर यहाँ पे दिख रही है. याकीमा जो स्टेट है वहाँ पे ये रिवर निकलती है. उसका डिटेल यहाँ दिया गया है. याकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन विच इज़ इन यूएसए का जो वाशिंगटन है, ईस्टर्न वाशिंगटन, वहाँ पे कोलंबिया रिवर वहाँ से निकलती है. उसका ये ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसमें से निकलती है. कोलंबिया रिवर है, उसका ही ये पार्ट है, ट्रिब्यूटरी है. द स्टेट इज नेम आफ्टर द इंडिजिनियस याकामा पीपल, और इसका जो नाम दिया गया है वो याकामा पीपल के नाम के ऊपर से ये नाम दिया गया है. याकीमा रिवर का नाम जो दिया गया है वो. तो ये रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरियस. ये रिवर काफ़ी डेंजरस थी, रिस्की थी. रिवर में तैरना, रिवर में स्विमिंग सीखना, वो काफ़ी डेंजरस था. मदर कंटिन्यूअली वार्नेड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. माँ मुझे कंटिन्यूअसली इस बात को लेकर वार्न किया करती थी कि याकीमा रिवर काफ़ी डेंजर है, और ये बात है मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली वो फ्रेश रखा करती थी. और मुझे ड्राउनिंग, जो लोग याकीमा रिवर में पहले डूब गए हैं, ये सारी बातें मुझे बार बार बताया करती थी. और इस तरह से याकीमा रिवर के डेंजर होने की जो बात है वो मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली माँ है वो फ्रेश रखा करती थी, और इस बात को लेकर मुझे वार्न किया करती थी कि याकीमा रिवर में नहीं जाना है, वो काफ़ी डेंजरस रिवर है. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल था वो काफ़ी सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. आप जानते हैं बच्चों कि जो स्विमिंग पूल होता है
एक एंड से वो शैलो होता है और दूसरे एंड से वो डीप होता है। एक ग्रेजुअल स्लोप होता है, शैलो से डीप की ओर होता है। तो जो शैलो एंड था YMCA पुल का, उसकी जो डेप्थ थी वो सिर्फ 2 और 3 फीट ही थी, और वहाँ से धीरे 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 ये डेप्थ बढ़ती जाती थी। वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और दूसरा जो एंड था वहाँ पे डेप्थ था 9 फीट, मानी 2-3 फीट से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली ये ड्रॉप 9 फीट तक जाता था। तो इतना डीप नहीं था YMCA पूल, और यहाँ पे स्विमिंग सीखना वो काफ़ी सेफ था मेरे लिए, ऐसा मुझे लगा। I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. स्विमिंग के लिए वाटर विंग्स मुझे मिले, मानी लाइफ जैकेट्स, जो एरी प्लास्टिक बैग होता है जो हमें डूबने नहीं देता है। मुझे पानी में नेकेड चलना अच्छा नहीं लगता था, बिना कपड़ों के चलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और बिना कपड़ों के चलना तैरना, मानी मेरी स्किनी लेग्स किसी को दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मानी यहाँ नैरेटर थोड़े शाई से है, अपना स्किनी लेग्स और अनक्लोथ्ड वे में स्विमिंग करना और चलना उसे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। पर उसके बावजूद भी स्विमिंग सीखने के लिए मुझे अनक्लोथ्ड ही स्विमिंग करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। स्विमिंग सीखने के लिए मैं अपने स्किनी लेग्स के साथ चला, नेक्ड चला, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और इसके लिए देखिए यहाँ फ्रेज यूज़ किया है, सबड्यूड माई प्राइड, मीन्स मैंने अपना प्राइड, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा रिस्ट्रेन किया, थोड़ा कम किया। क्यों? क्योंकि मुझे स्विमिंग सीखना था। एंड डिड इट, और मैंने स्विमिंग सीखा। आई स्टार्टेड लर्निंग दिस। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. शुरू से ही मुझे पानी का एक डिसलाइकिंग है। पानी में जाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उसके लिए डिसलाइकिंग रहा है बचपन से ही मुझे। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. देखिए बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। विलियम डगलास को वाटर से कब से फियर है, कब से पानी से डर लग रहा है, तो उसकी बात वो कर रहे हैं। अभी विलियम डगलस का एज क्या है? 10 to 11 ईयर्स, जब वो YMCA पूल में सीखने के लिए जा रहे हैं, पर उसे डर लग रहा है। और ये पानी का डर उसे कब से है, तो वो इंसिडेंट हमारे साथ यहाँ वो शेयर करते हैं। वो जब 3-4 साल के थे तब पापा उसे कैलिफोर्निया बीच स्विमिंग ले गए थे, तब से उसे पानी का डर लग रहा है। किस तरह से? ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम दोनों, जो सर्फ मानी वेव से जो फॉर्म होते हैं, उसमें हम दोनों खड़े थे साथ। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैंने तो पापा को पकड़ के रखा था, फिर भी वो जो वेव्स थे वो मुझे गिरा देते हैं, और वो पानी है मेरे ऊपर पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पूरा का पूरा पानी में दब जाता हूँ। माई ब्रीथ वॉज गॉन। आई वॉज फ्राइटनेड। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, और मैं काफ़ी सहमा सा था, डरा सा था, स्कैर्ड था। फादर लाफ, पर पापा हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट। पर मेरे दिल में काफ़ी डर बैठ गया था इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। वेव्स का जो पावर था मेरे ऊपर, वेव्स जिस फोर्स से आ रहे थे, उस पावर से मैं काफ़ी डर गया था। पानी का एक टेरर मेरे अंदर बैठ गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears.
अब यूके मैं YMCA पूल में सीखने जा रहा हूँ स्विमिंग पूल। तो फिर से वो पुराना जो डर था, जब मैं 3-4 साल पहले कैलिफोर्निया बीच गया था और जिस तरह से पानी से मुझे डर लग गया था, वो अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो चाइल्डिश फियर था, वो फिर से अराउज हो गया, स्टीयर्ड, वो फिर से मेरे अंदर फील होने लगा जब मैं YMCA पूल में गया तो। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर मैंने थोड़े ही वक्त में कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया। मैं अपने अंदर से ही इस डर को निकाल के YMCA पूल में सीखने के लिए रेडी हो गया। थोड़ा कॉन्फिडेंस मैंने गैदर कर लिया। आई पैडल्ड with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. मैं पानी में चला, पैडल का मतलब होता है मूव थ्रू द वाटर। मेरे जो वाटर विंग्स थे, लाइफ जैकेट्स थे, वो पहन के, और दूसरे बच्चों को देखकर मैं उसको इमिटेट करने लगा। जिस तरह से वो तैरते थे, चलते थे, मैं भी उसको कॉपी करने लगा और इस तरह से मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीखने की कोशिश करने लगा। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैं दिन में 2-3 बार इस तरह से स्विमिंग पूल में पानी के अंदर चलता था और प्रैक्टिस करता था। एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज मीन्स अभी मैं पानी से थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा था। वैन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी एक मिसशेप हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, मिस एडवेंचर हैपन। सो फ्रेंड, दिस वॉज द स्टोरी फॉर दिस सेशन। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डगलास YMCA पूल में स्विमिंग के लिए रेडी होते हैं, और उसके डर को लेकर हमने उसका जो चाइल्डहुड एक एक्सपीरियंस था वो कैलिफोर्निया बीच का शेयर किया। और अब आगे स्टोरी नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। जो मिसशेप, जो मिस एडवेंचर होता है उसके साथ, उसकी बात करेंगे। इस सेशन में जो डिस्कशन हमने किया है, लेट्स discuss a few question answers based on today's session. Question answer. When did Douglas decide to learn swimming and why? Douglas कब डिसाइड करता है स्विमिंग सीखने का और क्यों? Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn swimming. 10-11 साल के थे जब उसने स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया। He could swim in the Yakima River or the YMCA pool at Yakima. उसके पास 2 ऑप्शंस थे, याकिमा रिवर में सीखा जाए या YMCA पूल में सीखा जाए। द याकिमा रिवर वॉज डेंजरस, पर याकिमा रिवर में जाना, तैरना वो काफ़ी डेंजर था। रिवर वॉज ट्रेचरियस, मैनी पर्सन्स हैड ड्राउन्ड इन इट, और पहले कई सारे लोग इसमें डूब गए थे। सो ही चूज द YMCA पूल, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो YMCA पूल में सीखेंगे। इट वॉज कंसिडर्ड सेफ, क्योंकि YMCA पूल सेफ था सीखने के लिए। दैट्स वाई ही चूज YMCA पूल। आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। जब मैं पानी में जाता था तो मुझे पानी को लेकर एक डिसलाइकिंग रहा करती थी, सेज डगलास। ऐसी बात डगलास कहते हैं। When did he start having the aversion and how? कब से उसे ये डिसलाइकिंग थी और किस तरह से? The aversion started when Douglas was 3 or 4 years old. जब वो 3-4 साल के थे तब से ये डिसलाइकिंग उसे है। His father had taken him to the beach in California. पापा उसे कैलिफोर्निया के बीच ले गए थे। They were standing together in the surf. वो फादर सन दोनों वो सर्फ में बीच पर खड़े हुए थे। He had held his father tightly. डगलास ने पापा को पकड़ के रखा था। Even then the waves knocked him down and swept over him. फिर भी वेव्स उसके ऊपर आ गए, उसे गिरा दिया और पानी उसके ऊपर स्प्रेड हो गया। He was buried in water, और डगलास पानी में दब गए।
हिज ब्रीथ वॉज गॉन, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज फ्राइटनेड, और वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट अबाउट द एम्पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स का जो पावर था उसको लेकर उसके मन में ये टेरर, ये डर बैठ गया था। दैट्स इट, थैंक यू।